तो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि जो ऑपरेटिंग मोड है इट इज डिसाइडेड बाय द पिन MNMX बार एंड अगर हम इस पिन की बात कर रहे हैं MN/MX बार की, तो if this pin is made high और you can say इसको हमने 1 कर दिया है, it means it is working in minimum mode. and minimum mode का मतलब क्या है? when only 18086 microprocessor is used in a microcomputer system, then 8086 works in minimum mode. But in case we are using more than 18086 microprocessor in a microcomputer system, then 8086 works in maximum mode and this pin is put low और 0. तो ये दो ऑपरेशंस हैं. 8086 में ये फैसिलिटी है कि हम 8086 में प्रोसेसर्स को एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स भी एक साथ एक ही माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं. एंड फॉर दैट पर्पस हमें माइक्रो प्रोसेसर को ये बताना पड़ता है कि सिर्फ एक ही माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है कंप्यूटर में या एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं, सो दैट कि वो उसी कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करे. तो दैट इज़ वाई कि जब मोर देन 1 माइक्रो प्रोसेसर कनेक्टेड होंगे तो हम इसको मैक्सिमम MX बार पर पुट कर देंगे एंड माइक्रो प्रोसेसर विल नो कि जो माइक्रो कंप्यूटर है इट इज़ हैविंग मोर देन 1 माइक्रो प्रोसेसर एंड फिर अकॉर्डिंगली जो पिन्स का फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा. तो वो पिन डिस्क्रिप्शन हम अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे. एक हम मिनिमम मोड का देख लेंगे कि मिनिमम मोड में क्या पिन्स का डिस्क्रिप्शन है और फिर मैक्सिमम मोड का. तो जैसे हमने आपको बताया था कि पिन नंबर 24 to 31 जो है ये हमारी पिन्स एज पर मिनिमम और मैक्सिमम मोड वर्क करती हैं. तो अब ये देख लेंगे कि कौन सी पिन मिनिमम मोड में क्या टास्क परफॉर्म कर रही है. तो बिफोर दैट आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए. पंद्रह 20 मिनट. रोल नंबर 12 अमित. रोल नंबर 58. Present, sir. 59. Present, sir. 60. 61. Present, sir. 62. Present, sir. 63. Present, sir. 64. Present, sir. 65. 66. Present, sir. 67. Present, sir. 68. Yes, sir. 69. Yes, sir. 70. Present, sir. 71. Present, sir. 72. Present, sir. 73. 74. 75. Present, sir. 76. Present, sir. 77. Present, sir. 78. Yes, sir. 79. Present, sir. 80.
Yes, sir. 81, 82, 83, I am present, sir. 84, Yes, sir. 85, 86, Present, sir. 87, 88, Present, sir. 89, Yes, sir. 90, Present. 91, Present, sir. 92, Yes, sir. 93, 94, Present, sir. 95, Present, sir. 96, Present, sir. 97, Yes, sir. 98, Yes, sir. 99, Present, sir. 100, 101, Present, sir. 102, 103, Present, sir. 104, Yes, sir. 105, 106, Yes, sir. 107, Present, sir. 108, Yes, sir. 109, 110, 111, Present, sir. 112, Sir, 110 present. 112 है, 113, 114, 113 present, sir. 114, Present, sir. 114. 115, किसी की अटेंडेंस रह तो नहीं गई? रोल नंबर Sir, 110. 110 लगा दी भैया. Thank you, sir. 65 absent, 73, 74, 81, Sir, 74 present. 74, 81, 82, 85, 93, 87, 100, 102, 105, 109, 112, 115. So now let us discuss about the pin description of the pin description for minimum mode of operation of 8086. So when 8086 is connected in minimum mode, then the pin MN MX bar is connected to plus 5 volt of DC supply. Because high voltage or plus 5 voltage means कि it is connected to 1. And for that purpose हम क्या कर सकते हैं कि MN MX bar को directly VCC से connect कर देंगे. अब now in this case, what will happen to pin number 24 to 31? Because these pins are related to the mode of operation. तो 24 से 31 पिन नंबर्स में अब क्या फंक्शन होंगे उनको चेक कर लेते हैं. जैसे पिन नंबर 24 की बात करते हैं तो पिन नंबर 24 is used for INTA, and as you see there is a bar on this pin. It means that this signal is active low signal, and this is used for interrupt acknowledgement. Whenever microprocessor receives an interrupt signal, microprocessor issues an interrupt signal to that device from this interrupt signal has been initiated. So for this purpose INTA has been used. Next is ALE address latch enable. ये pin number 25 हो गई.
इसका फंक्शन हम लोगों ने 8085 में भी स्टडी किया है एंड इट गोज हाई ड्यूरिंग T1 फर्स्ट क्लॉक साइकिल में ALE सिग्नल हाई होता है। नेक्स्ट फिर DEN है, अगेन देयर इज अ बार ऑन दिस सिग्नल, इट मींस कि दिस इज आल्सो एन एक्टिव लो सिग्नल। पिन नंबर 26, it is used to enable the data, and here one more IC is used, Intel 8286 and 8287, which is an octal bus transceiver, and it is used here for output enable signal. It is also an active low signal. Then DTR bar, this is used for data transmit or receive. If this pin is at high or 1, data transmit वाला part work करेगा, अगर ये value 0 है तो data receive वाला part ये activate होगा। So again Intel 8286 and 8287 octal bus transceiver, because it is used for a bus transceiver system, means bus transmitting and receiving. So it will control the direction of data flow. एंड डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो का मतलब क्या हो गया, अगर ट्रांसमिट कर रहा है तो जो डायरेक्शन होगी डेटा की इट विल बी आउटसाइड माइक्रोप्रोसेसर। इफ रिसीविंग हो रही है डेटा की देन इट मींस कि जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ट डायरेक्शन होगी। सिमिलरली जो नेक्स्ट पिन है M/IO bar, it is used to select either memory or IO device. So when this pin is at 1, it means कि memory has been selected. When it is at 0, it means कि IO device has been selected. Next, pin number 29 is for WR bar, means कि write operation is in process. के बाद pin number 30 and 31 जो हैं, these pins are used for hold and HLDA. Hold signal is used by DMA whenever it wants access of the internal buses. It sends a hold signal to the microprocessor, which is at pin number 31, and whenever this signal is received by 8086 microprocessor, it generates an hold acknowledgement signal to the device. तो ये दोनों पिन्स हम लोगों ने 8085 माइक्रोप्रोसेसर में भी स्टडी करी थी एंड सेम फंक्शन 8086 में भी इन पिन्स का है। नेक्स्ट फिर बात करेंगे मैक्सिमम मोड की। तो मैक्सिमम मोड के केस में अगर हम पिन डिस्क्रिप्शंस की बात करेंगे तो ये जो 24 to 31 पिन्स हैं इनका जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। एंड मैक्सिमम मोड में प्रोसेसर कब ऑपरेट करेगा, व्हेन दिस MN/MX बार इज मेड लो, देन इट वर्क्स इन मैक्सिमम मोड। एंड इसको लो करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पिन को डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट कर देना होगा। तो जो ग्राउंड वाली पिन है हमारे पास में इसमें माइक्रोप्रोसेसर में, हम इस पिन को उस ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देंगे एंड माइक्रोप्रोसेसर विल वर्क इन मैक्सिमम मोड। अब नाउ व्हेन कनेक्टेड इन मैक्सिमम मोड, जो पिन्स हैं जैसे कि पहली दो पिन्स की बात करें QS0 एंड QS1 की, तो मोस्ट ऑफ द पिन्स used in maximum mode shows the status of the microprocessor. So first two pins की बात कर रहे हैं QS0, QS1, which are at pin number 24 and 25. So it is used for instruction queue status. अब क्योंकि यहाँ पर हम दो पिन्स यूज कर रहे हैं तो इन दो पिन्स का हमारे पास में स्टेटस पता होगा as per the values of QS1 and QS0. अब बिकॉज यहाँ पर हमारे पास में दो पिन्स हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। 2 to the power 2, 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। व्हेन बोथ पिन्स आर एट 0 0 और बोथ पिन आर एट लो, तो नो ऑपरेशन होगा।
मीन्स कि कोई भी क्यू स्टेटस नहीं है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म उस समय नहीं हो रहा है। व्हेन इट इज 0 and 1, इट मीन्स कि फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपकोड is called from the queue. 10 is for empty the queue and 11 is for subsequent byte from the queue. तो ये इंस्ट्रक्शन के स्टेटस के लिए यूज हो रही है। ऐसे ही नेक्स्ट जो 3 पिन्स है, अगर उनकी बात करेंगे तो नेक्स्ट 3 पिन्स हमारी कौन कौन सी हैं? S0, S1 एंड S2। तो दीज पिन्स आर एट आर 26, 27 एंड 28। तो ये स्टेटस सिग्नल्स हैं। जैसा 8085 में हम लोगों ने स्टेटस सिग्नल्स स्टडी किए थे, वैसे ही यहाँ पर भी ये 3 स्टेटसेस शो करने के लिए पिन्स का यूटिलाइजेशन किया है। 8085 में हमारे पास में सिर्फ 2 पिन्स थी, S0 एंड S1, और जो हम लोग स्टेटस चेक करते थे, एक हॉल्ट के लिए, एक रीड के लिए, एक राइट के लिए और एक ऑपकोड फेच के लिए। ये टोटल 4 स्टेटस हम 8085 में चेक करते थे। बट इन दिस केस जो स्टेटस है, स्टेटसेस की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी गई है सो दैट कि हम थोड़ा सा और क्लियरली स्टेटस के बारे में जान सकें कि माइक्रो प्रोसेसर क्या किस स्टेटस पे है। जैसे कि 8085 में हम लोगों के पास में सिर्फ 2 ऑप्शंस थे कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकते थे बाई checking S0 and S1 that it is reading or writing. But in case of 8086, यहाँ पर एक enhancement किया गया है कि we can identify one more thing that कि if reading operation is being performed, so it is performed from memory or from IO device. And same thing is for write operation also कि write operation जो है वो memory से perform हो रहा है या IO device से perform हो रहा है। तो ये एक feature यहाँ पर enhance feature है 8086 में कि हम ये भी यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है वो मेमोरी से हो रहा है या आईओ डिवाइस से। तो यहाँ पर भी हम वैल्यूज चेक कर सकते हैं S0, S1 एंड S2 की, एंड इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ये टोटल 8 कॉम्बिनेशंस हैं। तो S0, S1 और S2 इसको हम लोग बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अभी के लिए ये जो जितना अभी डिस्कस किया है, कुछ उसका डाउट हो आप लोगों को उसमें किसी में, तो वो आप लोग पूछ लीजिए। 2-3 मिनट्स हैं तो हम डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज फ्रॉम माय साइड लेक्चर अभी आज का कंप्लीट हो गया है, आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।